بدحالی پورے ملک کی بدحالی ہے۔ KCR منصوبے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل کر چلنا ہوگا۔ پانی کا مسئلہ 2 سال میں حل کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی سرکولر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر ریلوے اعظم سواتی اور دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ کراچی کی بدحالی پورے ملک کی بدحالی ہے۔ KCR منصوبے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کو مل کر چلنا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ، پانی، سیوریج اور انفراسٹرکچر شہر قائد کے دن بدن بڑھتے مسائل۔ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ حکومت کی طرف تعاون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سرکولر ریلوے منصوبے کے سنگ بنیاد کے موقع پر وزیر اعظم نے سرکولر ریلوے منصوبے کے متعلق تعاون پر وزیر اعلیٰ اور گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو۔ جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی معیشت کے حوالے سے اہم شہر ہے۔ 1970 میں یہ شہر کیا تھا مجھ سمیت سب جانتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں کراچی میں دہشت گردی نے سارے ملک کو متاثر کیا۔ شہر میں انتشار کے باعث معیشت تباہ ہوئی۔ 80s میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا۔ یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا، یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر، اور کراچی کی جو مسئلے مسائل آئے اس کے بعد اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ کراچی کی ٹرانسپورٹ پر سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ کراچی میں KCR سے پورا ملک فائدہ اٹھا سکے گا۔ کراچی کے 3 بڑے نالوں پر کام شروع کرنے پر خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم نے شہر کے باسیوں کو خوشخبری بھی سنائی کہ K4 کے ذریعے اگلے 2 سالوں میں کراچی کو پانی ملے گا۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے۔ اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیئرمین سے بریف لیا تھا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے۔ وہ جو اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے، جو انشاءاللہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تقریب میں گورنر عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وزیر ریلوے اعظم سواتی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے پھر ایک پرانا مسئلہ چھیڑ دیا۔ پچھلی بار بغیر مشاورت کے آرڈیننس جاری کرانے والے وزیر اعظم نے سندھ حکومت کو بنڈل آئی لینڈ منصوبے پر غور کرنے کا مشورہ دیا۔ جدید کراچی سرکولر ریلوے انفراسٹرکچر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان سندھ حکومت پر کافی مہربان نظر آئے۔ کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسٹمنٹ کھینچ سکتا ہے۔ جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا۔ خطاب آگے بڑھا تو سندھ حکومت کو مخاطب کر کے بڑے مسئلے پر بات بھی کر گئے۔ وزیر اعظم صاحب، مسئلہ ہے زمین کا، اور زمین ہے سندھ حکومت کی، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ نہیں، پورا جزیرہ بنڈل آئی لینڈ۔ چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ جو ہم یہ بنڈل آئی لینڈ کا پروجیکٹ ہے، اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے۔ وزیر اطلاعات سعید غنی سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب وفاقی حکومت باقاعدہ رابطہ کرے گی تو جواب دیں گے۔ دیکھیں، اس پہ سندھ حکومت کا واضح موقف پہلے آ چکا ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم سندھ حکومت سے اس پہ بات کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ جب بات کریں گے تو اس کو دیکھیں گے۔ آپ اس کا سوال بنڈل آئی لینڈ کے بارے میں صدارتی آرڈیننس کے اجرا کے بعد سندھ حکومت نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا، جس کے بعد وفاق کو اپنا اقدام واپس لینا پڑا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر بات چھیڑی ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ آج وفاق نے KCR کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا۔ پیپلز پارٹی کا منصوبہ PTI نے اپنے حصے میں ڈال لیا۔ جلد بازی میں جو افتتاح کیا گیا، اللہ کرے یہ منصوبہ مکمل ہو۔ اقتدار انور کی رپورٹ۔
कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह सूबाई वजीर इत्तलात की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि साबका वफाकी हुकूमत ने सूबे की मंजूरी के बावजूद ML1 पर तवज्जो मरकूज की। मौजूदा हुकूमत को भी 3 साल गुजरने के बाद इसका ख्याल आया कि KCR के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए सूबाई हुकूमत की जितनी जिम्मेदारी थी, मैं समझता हूँ हमने उससे ज़्यादा आगे बढ़कर कोशिश की। लेकिन चूँकि अगर ये CPEC में शामिल हो, अगर किसी और मुल्क से इसकी फंडिंग होनी हो, फाइनेंस होना हो, तो फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर वो काम नहीं हो सकता है। मैंने आपको खतूत बताएं, आप कहेंगे तो मैं आपको कॉपीज़ दे दूंगा। एक नहीं दर्जनों खतूत हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को लिखे गए कि आप इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब अगर चूँकि वो अपने हिस्से में डाल रहे हैं उस काम को और कुछ काम तेज़ किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, करने मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि हो जाए। लेकिन जिस अंदाज में किया गया है मुझे थोड़ा सा ये इसके अंदर मिसमैनेजमेंट लगी और शायद जल्दबाजी लगी है। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि ये कोई नया मंसूबा नहीं, बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने जल्दबाजी में पुराने सर्कुलर स्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया है, जिसके लिए सिंध हुकूमत बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस कर चुकी है। हमने अदालत के हुक्म के मुताबिक 6 अरब रुपए जो हैं वो अपने बजट में एलोकेट कर दिए पुरानी सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए। हालांकि हम ये समझते हैं कि कराची शहर को उस पुरानी लोकल ट्रेन की नहीं बल्कि नई मॉडर्न एक KCR की ज़रूरत है, जिस पर आज बात की गई और मैं उस पर भी बात करता हूँ। सईद गनी ने कहा कि साद रफीक की बात दुरुस्त है कि रेलवे के पास इतने वसाइल नहीं, मगर हुकूमत ने ये कहा नहीं कि मंसूबा रेलवे मुकम्मल करेगी। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। और वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरा कराची मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस लौट गए। वज़ीर आज़म ने KCR मंसूबे के इफ्तिताह के बाद गवर्नर हाउस में सियासी रहनुमाओं और उलमाए कराम से भी मुलाकातें की। साबिक वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह से वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की कराची यात्रा, मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें, KCR मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस पहुँचे, जहाँ सिंध से मुताल्लिक उनके सियासी माविन खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह, साबिक वफाकी वज़ीर जफर अली शाह और मुस्तफ़ा महसन ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और PTI में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने उलमा कराम और कराची के दौरे पर आए बोरी जमात के सरबराह मफजल सैफुद्दीन से भी मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर सिंध भी शरीक थे। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान के दौरे पर ब्रीफिंग दी। आज अब्र करम भी आया इस शहर के लिए और खान साहब लेकर आए। सिंध में ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। अरबाब गुलाम रहीम साहब आए थे, ये लोग आ गए और बहुत बड़ी तादाद। ये तो वो हैं जो कि पीपल्स पार्टी में नहीं थे, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले साफ सुथरे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद अनकरीब तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने वाली है और इंशाल्लाह बहुत सारे राब्ते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के बायस शहर में ट्रैफिक जाम रहा, जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना प्रोटोकॉल थोड़ी होता है, हम खुद सरकारी बंदे हो गए, क्या करें? बंदे को ड्यूटी पे पूछना हो, बंदा क्या करे? तब्दीली आई या नहीं? तब्दीली बहुत ख़राब आई, बहुत गलत हो रहा है, ये पब्लिक को परेशान किया जाए। क्या कह सकते हैं, बस हमारे हुक्मरान ऐसे। तब्दीली आई है, भी आए तो वो भी ऐसे ही थे, अब ये आए तो उन्होंने बोला तब्दीली आएगी, लेकिन क्या बोल सकते हैं। अल्लाह ये इनको समझाए। ये मुगलिया दौर के हमारे हुक्मरान हैं, इतना मुगलिया दौर वाले भी नहीं करते थे जितना ये कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तसर दौरा के बाद कराची से इस्लामाबाद वापस लौट गए। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और MD कैट के इम्तहानात में होने वाली बदनज़मी के खिलाफ गवर्नर हाउस पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की जानिब मार्च भी किया। हसन अब्बास की रिपोर्ट। तालीम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस्लामी जमीयत तलबा और MD कैट में हिस्सा लेने वाले दीगर तालिब इल्मों की जानिब से कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज किया गया। बाद अज़ा मुजाहिरीन गवर्नर हाउस फवारा चौक जाने में कामयाब हुए। तलबा ने वफाकी हुकूमत और PMC के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हम नहीं मानते, तालिब इल्मों ने MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा करते हुए गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया। नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा हमजा सिद्दीकी का कहना था कि हुक्काम ने कल तक का वक्त मांगा है, अगर मामला हल न हुए तो जुमरात को इस्लामाबाद में PMC के सामने धरना देंगे। तुम्हें हम कल सुबह 11 बजे तक का वक्त देते हैं और गवर्नर साहब आपको कल रात तक का वक्त देते हैं कि फिर दमादम मस्कलंदर होगा इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह कराची के महाज पर ये जंग नाज़िम कराची हसन सलीम भाई लड़ेंगे और मैं आपका मुकदमा लेकर जुमेरात के रोज PMC के बाहर मौजूद होऊंगा। लाठियां मारेंगे तो लाठियां खाएंगे,
गोलियां चलाएंगे तो गोलियां खाएंगे, लेकिन आपको हक दिलाएंगे। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। धरने के मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही, जबकि पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने वाले तमाम रास्तों की रुकावटें लगाकर बंद कर दिया था। और शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ले ली। शहर भर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर कायद में बादल फिर बरस पड़े। मलीर, एहसनाबाद, लाहंडी, क्लिफ्टन, डिफेंस, शारे फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। इधर लियारी, पाक कॉलोनी, लालू खेत, गुलशन मेमार, मंगोपीर और रंगी टाउन की माड़ी में भी बारिश की बदौलत गर्मी की छुट्टी हो गई और शहरियों ने सुख का सांस लिया। दूसरी जानिब बारिश के बाद सदर, गवर्नर हाउस, वारा चौक समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, जबकि शारे फैसल, हॉकी स्टेडियम समेत कई मकामात पर तेज हवाओं के झक्कड़ से दरख्त उखड़ गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है और अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठट्टा, बदीन, उमरकोट और सूबे के दीगर हिस्सों में भी बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के बाद PDM ने भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तमाम बल्दियाती इदारों और ज़िला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई हैं। PDM ने सिंध के जारी करदा एलामिया के मुताबिक मानसून सिस्टम के तहत कल से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तेज़ और तूफानी बारिशों का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम बल्दियाती इदारों और ज़िला इंतजामिया को अलर्ट रहने, सड़कों पर निकासी आब के निज़ाम को फौरी बेहतर करने और अमले को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। शहर कायद में कातिल मच्छर के वार जारी हैं। एक रोज़ में मजीद 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। कराची में मुतासर अफराद की तादाद 300 से मुतजाविज़ हो गई। उधर सिंध में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम को ख़त्म करके दीगर प्रोग्राम्स के साथ मुंसलिक कर दिया गया। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम कराची के अमले ने ऑफिस आना ही छोड़ दिया। शहर कायद में कातिल मच्छर के वार ताहाल जारी हैं। कोरोना वायरस के वार जारी। कराची में 24 घंटे में 173 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उधर शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 दिन के अंदर कराची में 1,57,307 अफराद ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान 173 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3 दिन में शहर में 1,57,307 अफराद की वैक्सीनेशन हुई। कॉलेजेस के बाद स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। क्लिफ्टन के मारूफ सदर स्कूल से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया। महकमा सेहत और डायरेक्टरेट स्कूल्स की टीम के इश्तराक से वैक्सीनेशन की जा रही है। एहसन चांडियो की रिपोर्ट। कॉलेजों के बाद स्कूलों में भी वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। क्लिफ्टन में वाक़या स्कूल में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स और महकमा सेहत के इश्तराक से वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। इस मौके पर तुलबा के साथ उनके वालिदैन भी मौजूद थे, जिनका कहना है कि दुनिया भर में तुलबा को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस अमल से मुतमईन है। I think the world has been totally changed. Every parent should encourage their child to take this vaccination. This is a wonderful step, and I think we should encourage every mother and every child to take this vaccination. And I am very pleased to see all the arrangement of the Cedar College, that they have made a wonderful arrangement. डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की रजिस्ट्रार रफिया जावेद ने स्कूल का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल वजीर तालीम सिंध के अहकामात पर शुरू किया गया है। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल में रजिस्टर्ड 90% ऐसे तुलबा को वैक्सीन लगाई गई है जिनकी उम्र कम अज कम 15 साल है। दीगर स्कूलों को भी एतमाद के साथ इस अमल को शुरू करना चाहिए। और चहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी पुलिस और रेंजर्स की दरख्वास्त पर आयद की गई। महकमा दाखिला ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कल चहलम के मौके पर कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। और शहर कायद की तालीमी इदारों में कल आम तातील होगी। चहलुम के मौके पर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जबकि जामियात खुली रहेंगी। आम तातील का फैसला महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया गया। दूसरी जानिब जामियात मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। डॉलर की ऊंची उड़ान थम नहीं सकी। ओपन मार्केट में 60 पैसे इजाफे से 171 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
इंटर बैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की तूफानी इनिंग्स अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने रुपए को हलकान कर दिया, 60 पैसे इजाफे से 171 रुपए 60 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में भी डॉलर बेकाबू नजर आया, 52 पैसे महंगा होकर बुलंद सतह 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 169 रुपए 65 पैसे तक ट्रेड करता रहा। 4 माह में डॉलर 17 रुपए 32 पैसे तक महंगा हो चुका है। मौशी माहिरीन का कहना है कि अगस्त में 6 अरब डॉलर से जायद की दरामदात की गई। अदायगी के बायस रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। दरामदात बढ़ने पर तिजारती खसारा बढ़ रहा है। यही नहीं, आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। डॉलर बेतहाशा स्मगल और अफगानिस्तान हुकूमत को चाहिए कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज को सपोर्ट करे, क्योंकि वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। उनको चाहिए कि डॉलर की स्मगलिंग को रोकें और जो अफगानिस्तान की जो हमारे पे बोझ आ गया उसको देखें। तो मैं नहीं समझता कि ये डॉलर वापस आने में कोई वजह होगी। दूसरी करेंसियों की बात की जाए तो ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 200 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 235 रुपए 50 पैसे। इमाराती दिरहम 40 पैसे महंगा होकर 47 रुपए 50 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 15 पैसे इजाफे से 45 रुपए 60 पैसे का हो गया। और महकमा तालीम सिंध ने फौतीदगी कोटे पर भर्ती मुलाजमीन का देरीना मसला हल कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल्स ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसरान को फौतीदगी कोटे पर भर्ती मुलाजमीन के तमाम वाजिबात की अदायगी के अहकामात जारी कर दिए। फौतीदगी कोटे पर भर्ती मुलाजमीन 2 साल से अपनी तनख्वाहों से महरूम थे। सेक्रेटरी स्कूल्स अकबर लगारी ने शहर कायद समेत सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसरान को तनख्वाहें जारी करने की हिदायत दे दी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मालियों और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए भेजी की समरी सिंध काबीना ने मंजूर कर ली। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड ने 3 पोस्टों को प्राइवेटाइजेशन की बुनियाद पर रखने की दरख्वास्त की थी। इन पोस्टों में एमडी ग्रेड सेक्रेटरी और एमडी फाइनेंस की ग्रेड 19 और 20 की पोस्टें शामिल हैं। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत वाटर बोर्ड की सर्विसेज और माली उमूर में बेहतरी लाना शामिल था। महकमा तालीम सिंध ने सूबे के स्कूल्स की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी है। महकमा स्कूल के पूरे सेक्रेटेरिएट में खुफिया कैमरे नस्ब करा दिए गए हैं, जिसकी निगरानी सेक्रेटरी तालीम स्कूल गुलाम अकबर लगारी खुद कर रहे हैं। शहर कायद की पुलिस मोबाइलों की मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। अब पुलिस मोबाइलें SHOs खुद मरम्मत कराएंगे। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास ने खराब मोबाइलों की मरम्मत के लिए 7 करोड़ का खुसूसी बजट जारी कर दिया है, जिसके तहत SHOs अपनी मोबाइलों की मरम्मत के जिम्मेदार खुद होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हंगामी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर अमरीका रवाना हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बिलावल भुट्टो अपने दौरे में आला अमरीकी ओहदेदारों से अहम मुलाकातें करेंगे। सिंध हुकूमत ने वफाक को तवानाई को नाकाम करार दे दिया है। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का ये कहना है कि मुसलसल नाकाम हुकूमती पॉलिसी के बाइस बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आरिफ जतोई की जानिब से वजीर आज़म का दिफा करने पर हुकूमती अरकान ने ऐवान में शोर शराबा किया। असेंबली के इजलास में एक बार फिर शोर शराबा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पीपल्स पार्टी की रुकन फरद समी ने LNG और CNG की कीमतों में इजाफे पर इजहार ख्याल किया तो वजीर तवानाई इम्तियाज शेख वफाक पर बरस पड़े और कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार नाकाम तवानाई पॉलिसी को करार दिया। 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग है पूरे शहरों में, आपके शहर में भी होगा मैडम स्पीकर, ये जितने बैठे हैं कि ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लोग अपने जेबों से चंदा करके बनवा के वो ट्रांसफार्मर बनवाते हैं, वापडा और अपना कोई भी इसमें बीच में नहीं आता। ये सिंध के लोगों को सज़ा दी जा रही है, ये सिंध के लोगों को
जानबूझकर ये चीजें की जा रही हैं। GDA के आरिफ जतोई वजीर आजम के दिफा के लिए मैदान में आए। कहा ये वजीर आजम को बार बार सिलेक्टेड कहते हैं। इन्हें पता है 88 में जो वजीर आजम बना था वो भी सिलेक्टेड था। बार बार ये कहते हैं ना सिलेक्टेड, ये थोड़ा सा मैं हटके से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ इस पाकिस्तान में मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। सिलेक्टेड 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 ये कहते हैं। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर जो बना था 88 में वो भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। क्यों क्यों आप क्यों? इस पे या रेजोल्यूशन पे बात करें या मैं बोल रहा हूँ, पे बात करें। आप खामोश रहें। आरिफ जतोई के बयान पर हुकूमत अरकान खड़े हो गए और ईवान में शोर शराबा शुरू कर दिया। GDA रुकन से माफी का मुतालबा भी किया। ये इंटरप्ट क्यों करे? इनको इंटरप्ट क्या? मैडम ये बैठे जैसे मैंने खामोशी से सुना, अभी ये भी खामोशी से सुने। सीरियस नहीं है एजेंडा पे आने के लिए। मुनासिब बात नहीं है जो जतोई साहब कर रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज टू द हाउस। Why should I apologize? I want to explain the facts. You should. मैं apologize to मैं facts समझा रहा हूँ। You have to. डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने एजेंडे से हटकर बात करने पर आरिफ जतोई का माइक बंद कर दिया। सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने सखर IBA यूनिवर्सिटी तरमीम बिल और मोटर व्हीकल तरमीम बिल ईवान में मुतारिफ कराए, जो स्पीकर ने गौर के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिए। जबकि सिंध आर्म्स एक्ट तरमीम बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। MQM बहाली तहरीक के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची के नौजवान को नौकरियों के बाद आला तालीम से भी महरूम किया जा रहा है। सुहेल शब्बीर की रिपोर्ट। फारूक सत्तार ने कराची के नौजवानों को आला तालीम से महरूम करने का इल्जाम लगा दिया। PIB कानूनी में APMSO के जिम्मेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान को जानबूझकर PMC के इम्तिहानात में फेल किया जा रहा है। एक वक्त में 3 टेक्स्ट बोर्ड के सवाल भेजे जा रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। इसका मतलब यह है कि कोई एक मयार पर और किसी एक निज़ाम के तहत ये टेस्ट नहीं हो रहे। किसी एक मयार स्टैंडर्ड या किसी एक निज़ाम के तहत ये टेस्ट नहीं हो रहे। एक दिन पेपर होता है तो उसमें इस्लामाबाद टेक्स्ट बोर्ड के सवाल आते हैं, दूसरे दिन पेपर होता है तो उसमें पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के सवाल आते हैं, और तीसरे दिन पेपर होता है तो उसमें सिंध टेक्स्ट बोर्ड के सवाल आते हैं। MQM बहाली के सरबराह ने कहा कि पहले कोटा सिस्टम की मार मारी थी, अब तालीम से भी दूर किया जा रहा है। ये जो कोटा सिस्टम की लेगेसी है, उसकी तलवार अब भी मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक कर रही है। किसी न किसी शक्ल में मेरिट का कत्ल हो रहा है, गैर आईनी है। आइन में कोटा सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन चले मैं उसका रोना आज नहीं रोता, लेकिन एक नई शक्ल में, एक नई साजिश, नई पॉलिसी कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फारूक सत्तार ने टीचर्स की नौकरी में भी कराची के लोगों को फेल करने की मजम्मत की। सुहेल शब्बीर, सिटी 21। और शहर कायद की टूटी फूटी सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मलीर में DC ऑफिस के सामने वाली सड़क पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं, जहां बारिश के बायस पानी जमा हो जाता है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। या मोहल्ले की ये कोई गली या मोहल्ले की टूटी हुई सड़क नहीं, बल्कि डिप्टी कमिश्नर मलीर के दफ्तर के सामने का मंजर है, जहां सड़क पर गड्ढे पड़े हैं और इनमें बरसाती पानी भी जमा है। DC ऑफिस मलीर के सामने की सड़क की ज़बू हाली के सबब लांडी और कोरंगी जाने वालों को सुस्त ट्रैफिक में कीमती वक्त जाया करना पड़ता है। शहरी कहते हैं डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर के आगे की सड़क नहीं बनवा सकते तो दीगर सड़कें क्या बनवाएंगे। ये तो डिप्टी कमिश्नर साहब को देखना चाहिए, नहीं हुकूमत को देखना चाहिए। इनके सामने ये हाल है तो दूसरी साइडों पे क्या हाल होगा। दूसरी साइडों पे तो सड़कें टूटी हुई हैं, जरा सी थोड़ी सी बारिश होती है सड़कें टूट जाती हैं। जिला मलीर के शहरी किसी ऐसे मसीहा के मुंतजिर हैं जो हकीकी मायनों में आवाम की तर्जुमानी करे और उनके मसाइल हल करे। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में छोटे छोटे मसाइल कभी कभी बड़े बड़े बन जाते हैं। सीवरेज जैसा बुनियादी मसला मच्छर कॉलोनी के रिहायशियों को मुसीबत में डाले हुए है। पूरी सड़क पर सीवरेज का पानी खड़ा है, जो न सिर्फ कारोबार मुतासर कर रहा है बल्कि आने जाने वालों के लिए भी
अजियत का बाइस है। ये ना दरिया है ना झील, बल्कि मच्छर कॉलोनी की सड़क है जो गटर के गंदे पानी से भरी हुई है। मच्छर कॉलोनी में सीवरेज का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक अरसे से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कहते हैं कि 12 शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मुंतखब नुमाइंदे भी इलेक्शन जीतने के बाद नजर नहीं आए। और ये पूरा जो इस वक्त कराची की आवाम नहीं, पूरी पाकिस्तान की आवाम मसाइल में मुब्तला है, परेशान है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिटाई का कोई मेंबर या पिटाई का कोई आदमी आ नहीं आ रहा। सीवरेज का पानी खड़ा होने से दुकानदार भी कारोबार मुतासर होने का शिकवा करते नजर आए। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। जो सेलिंग पहले होती थी, अभी लोग यहाँ मूव नहीं हो रहे, ना हमारे कारोबार, और हम सिर्फ दुकान में बैठे हुए और किसी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसे होते थे कि हमारे दुकान में इतने ग्राहक होते थे कि हम दुकानदारी नहीं कर पा, समझ नहीं आती थी कितना कैसे संभाले। अभी हमारे पास ग्राहक ही नहीं। आप देख लें किसी भी दुकान में सारे दुकानदार लेके बैठे हुए हैं। हालांकि हमने यहाँ के जिम्मेदारों को भी बोला हुआ है कि भाई इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। मोहल्ले की मस्जिद तक का रास्ता भी गटर के पानी से भरा हुआ है। नमाजी शिकवा करते हैं कि मस्जिद तक पाक कपड़ों में नहीं पहुंचा जा सकता। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हुक्काम बाला नोटिस लेकर मसला फौरी हल करवाएं ताकि वो सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। वेलकम बैक। उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल करने के लिए कराची पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस के साथ आने वाला तिब्बी अमला आज रात लेजेंडरी अदाकार की हालत का जायजा लेगा और फैसला करेगा कि वो सफ़र के काबिल हैं भी या नहीं। CAA ज़राए के मुताबिक मनीला से आए एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मौजूद रहेगी। एयर एम्बुलेंस के तिब्बी अमले की जानिब से मारूफ कॉमेडियन की यह हालत सफ़र के काबिल करार दिए जाने की सूरत में उन्हें आगा खान अस्पताल से एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाएगा, जहां से एयर एम्बुलेंस उन्हें लेकर बरास्ता जर्मनी वाशिंगटन रवाना होगी। दिफाई चैंपियन नेशनल बैंक और वापडा की टीमें तीसरे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। नेवी और मारी पेट्रोलियम की सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। नेवल स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के तहत और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर निगरानी शहर कायद में अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में इवेंट के पहले सेमीफाइनल में वापडा ने नेवी को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फातेह टीम के लिए अलीम उस्मान, मुबशिर अली और अतीक अरशद ने बेतरतीब 16वें, 26वें और 59वें मिनट में गोल स्कोर किए। 3 क्वार्टर के अख्ताम तक पाकिस्तान वापडा को 2 गोल की सबकत हासिल थी। मैच का तीसरा गोल आखिरी क्वार्टर में स्कोर हुआ। मुबशिर अली को उम्दा कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दूसरा सेमीफाइनल में नेशनल बैंक ने मारी पेट्रोलियम को 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल कप्तान अबू बकर महमूद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर स्कोर किए। डिफेंडर को तोड़ रहे हैं, अच्छी एक मतलब फिर हिट लगाने की कोशिश की और ये सीधी गेंद गोल के अंदर पेनाल्टी कॉर्नर के लिए। और अबू बकर नेशनल बैंक के गोलकीपर मजहर अब्बास उम्दा कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जैसा कि आपको मालूम है सेमीफाइनल मैच एक डू एंड डाई मैच होता है और ये है कि हम लोग इस बात के लिए भी तैयार थे कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जैसा कि हमारा साहब का एक रिकॉर्ड है कि हम लोग लास्ट जो इस टूर्नामेंट के दो टूर्नामेंट्स हुए हैं वो दोनों के हम लोग चैंपियन हैं। नेशनल बैंक के नवीद मैच के दौरान गेंद लगने से जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इवेंट का फाइनल और तीसरी पोजीशन का मैच मंगल को होगा। 8 रोजा टूर्नामेंट अपने अख्तामी मराहिल में पहुंच चुका है। फाइनल में वापडा और नेशनल बैंक की टीमें आमना सामना करेंगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और शोबे सेहत में अदालती अहकामात के खिलाफ तकरीरों का अमल जारी है। सेक्रेटरी सेहत ने 19 ग्रेड के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को 20 ग्रेड के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज दे दिया है। 19 ग्रेड के डॉक्टर अयूब बब्बर को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी का MS मुकर्रर कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन तालपुर से। मोहसिन, बताइएगा क्यों इन्हें 19 ग्रेड में कर दिया गया है?
बहुत शुक्रिया। देखिए, शोबा सेहत के अदालती अहकामात के खिलाफ जो है तकरीरों का अमल जारी है। सेक्रेटरी सेहत ने 19 ग्रेड के जो सीनियर मेडिकल अफसर को 20 ग्रेड का मेडिकल सुपरिटेंडेंट इजाफी चार्ज दे दी गई है। 19 ग्रेड के डॉक्टर अयूब क्वेश्चन गवर्नमेंट अस्पताल कॉलोनी का MS जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी सेहत के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अदालत की तरफ से सिंध हुकूमत को हुक्म दिया गया था कि OPS की बुनियाद पर तकरीर नहीं की जाएगी, मगर उसके बाद भी अमल जारी है। शोबा सेहत में अदालती अहकामात के खिलाफ तकरीरों का अमल वो जारी है। जी, अदालत ने हुक्म दिया था कि 19 ग्रेड में तकरीरी न की जाए, बावजूद इसके किया गया। आप आगाह करे थे मोहसिन तालपुर, आपको शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने शीशा कैफे पर छापे के दौरान LCD और जनरेटर भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमे में सामान का तस्करा तक नहीं किया। आपको बता रहे हैं, गुलिस्तान जौहर पुलिस ने शीशा कैफे पर छापे के दौरान LCD और जनरेटर भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमे में सामान का तस्करा भी नहीं किया है। यह है वो शीशा कैफे जिस पर छापा मारा गया, और छापा मारा गया था कि शीशा कैफे खोलने पर पाबंदी आयद है, लेकिन वहां पर छापे के नतीजे में न सिर्फ LCD बल्कि जनरेटर भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा जो दर्ज किया है उसमें सामान चोरी होने का तस्करा भी नहीं किया है। आपको बता रहे हैं, शीशा कैफे पर छापा मारा गया है गुलिस्तान जौहर में। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए City 21।